Malik Ghulam Mohammed, Governor General. Number B is Malik Ghulam Mohammed. Malik Ghulam Mohammed, short name which I will use for him is Sir, MGM. MGM 1951 till 1955 he remained Governor General of Pakistan. Is it clear? In his time period, he introduced major domestic policies. Like, what were the domestic policies introduced by Malik Ghulam Mohammed? Yes, जी बेटा, domestic policies of Malik Ghulam Mohammed. Domestic policies. You need to know that in his domestic policies, the first main point was number 1, second BPC report. Second BPC report, that is the first important domestic policy. What was the name of this policy? Second BPC report, Basic Principles Committee report. You have done the first one yesterday. Is it clear? Those who were absent. So first वाली फेल थी, फेल सेकंड वाली भी, ठीक है. सेकंड बीपीसी रिपोर्ट के बाद another domestic policy of Malik Ghulam Mohammed was related to that. Second domestic policy was planning commission. Planning commission, और इसमें 5-year प्लान. पहले इसने 6 ईयर किया, फिर बाद में इसी ने इसको रिवर्स करके 5-year प्लान कर दिया. तो पहले आपके बुक में 2 नाम लिखे होंगे, फर्स्ट 6 ईयर एंड देन 5 ईयर. तो आप 5 ईयर कर लें, दैट इज सफिशिएंट. इज इट क्लियर? देन वी हैव डिस्कवरी ऑफ नेचुरल गैस. यस बेटा, ये 2 दफा बना है तो इसलिए आप ईयर ना लिखें इसका. डिस्कवरी ऑफ नेचुरल गैस 1952. और देन वी हैव जूट प्रोसेसिंग मिल्स इन ईस्ट पाकिस्तान. जूट processing mills in East Pakistan. Now look at the main works. Now these 4 works are sufficient. Is it clear, beta? जी, अस्सलाम वालेकुम. ईमान वापस आ गई बेटा? जी सर, मैं आ गई. चलिए, गुड. कुछ जीत के आई हो या नहीं? जी सर, गोल्ड मेडल जीते. वाह, वेरी गुड. गोल्ड मेडल हो गया, जबरदस्त. सर, हाँ, कांग्रेचुलेशन. थैंक यू. हाँ, शी इज फुटबॉलर. अच्छा जी, अब बेटा, नाउ जस्ट लिसन. सेकंड बीपीसी रिपोर्ट. नाउ व्हाट वर द मेन फीचर्स? दिस report was layout of future constitution of Pakistan. Is it clear? This was the layout of the future constitution of Pakistan. BPC report. बेटा ये बनाता कौन था? प्राइम मिनिस्टर, ये, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अंडर द लीडरशिप ऑफ गवर्नर जनरल. आप कह लें कि गवर्नर जनरल की लीडरशिप के अंडर ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पास दैट
report. Is it clear? What were the main features of this report? Number one, PM and President must be Muslim. Number one, PM and President must be Muslim. Number two, representation in assembly on parity basis. Representation in assembly on parity basis. Number three, language issue would be discussed. Language को कौन डिस्कस करेगा? असेंबली, गवर्नमेंट बाद में डिसाइड करेगी. लैंग्वेज will be decided by assembly. पैरिटी कहते हैं इक्वालिटी की बेस पे के सारों को इक्वल बेसिस पे सीट्स मिलेंगी. इक्वालिटी यही होती है ना कि आपको 10 सीट्स अगर आपकी हैं तो 10 अगर मुस्लिम को मिली हैं तो 10 ही हिंदूज को मिलेंगी, 10 ही सिख को मिलेंगी, तो हर कम्युनिटी को इक्वल सीट्स मिलेंगी. इज इट क्लियर? अगर हम कहते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, तो इसका मतलब क्या होगा कि सीट्स वुड बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर एवरीवन? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर बेटा? Yes, ओके. नाउ वी हैव अनदर इंपॉर्टेंट थिंग कि पैरिटी की बेस पे सीट्स मिलनी है. और now language issue would be decided by assembly later on in Pakistan. And another important point is bicameral legislature. What is meaning of the word bicameral legislature? Houses in the law making body would be, legislature is called law making body. So houses in legislature would be bicameral, means के two houses would be there. Yes, unicameral पहली रिपोर्ट में थी और bicameral दूसरी रिपोर्ट में थी. Now this report again failed. This attempt failed. This attempt failed. This attempt failed because of East Pakistan, who wanted seats on population basis, और एक तो इस वजह से हुई, और उलमास also rejected this report. Now अब मौलवियों को अब क्या मसला हो गया? What was the issue with Maulvis now? They must be satisfied with this point. फिर भी मौलवी क्यों satisfied नहीं थे? Because and सर वो खत्म नबूवत, हाँ, उलमास wanted Ahmadis to declare as Shia, as non-Muslim, as non-Muslims. Beta, Ahmadis, can anyone tell? सर वो वो एक पर- मतलब सर वो ऐसा खुद को ये मुसलमान कहते हैं, लेकिन उनका कोर बिलीफ है कि जो उनका मिर्जा अहमद गुलाम कादियानी था, इज लास्ट प्रॉफिट. Very good, very good. अब बेटा, have you ever seen a statement in the shops जहाँ पे लिखा होता है कादियानी के साथ तिजारत नहीं कर सकते, कादियानी, यस सर, एक काफी वर्ड जगह यूज होता है कादियानी के बारे में. पाकिस्तान के अंदर अक्सर शॉप्स के अंदर हर जगह पे लिखा होता है सर कादियानी. मिर्जाई, पाकिस्तान के अंदर आज भी, यस बेटा, पाकिस्तान के अंदर आज भी कादियानी के बारे में आपको ना अक्सर अक्सर जगहों पे कादियानियों के बारे में पाकिस्तान के अंदर पब्लिसाइज भी किया होता है कि कादियानी के बारे में. यू कैन सी, ये अक्सर जगहों पे शॉपकीपर्स में, इन शॉप्स ऑफ पाकिस्तान,
ये हर जगह पे ये लिखा नजर आएगा आपको। ये आप देखें, ये क्या लिखा हुआ है, ये पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे इनके बारे में आपको ये मिलेगा। शॉप्स के बाहर, ये मैं आपको क्लियरली, ये शॉप्स के बाहर आप देखें, ठीक है, यू विल फाइंड दीज थिंग्स। अब हुआ क्या कि एक बंदा था जिसका नाम था, ये स्पेशल, ये तस्वीर है उस बंदे की, इसका नाम है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। कादियानी। यस बेटा, सर नाम बता रहा था। हाँ, गुलाम अहमद कादियानी। अब बेसिकली हुआ कि ये 1920 और 1910 और 1920s के दरमियान की बात है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का जो सब कॉन्टिनेंट के अंदर इशू था वो राइज हुआ कि ही डिक्लेयर्ड, या ही वाज द वन whom people wanted, या they believed that he was the prophet, he was their prophet। ठीक है, इसकी वजह से जो इस्लामिक कॉन्सेप्ट है, लास्ट कैलिफेट बिलोंग्स टू प्रॉफिट मोहम्मद, ये उसके अगेंस्ट है। ठीक है, फंडामेंटल बिलीफ ऑफ इस्लाम जिसमें हम खत्म नबूवत की बात करते हैं कि लास्ट प्रॉफिटहुड जो है वो एंड कहां पे हुई थी, प्रॉफिट मोहम्मद पे। तो इसलिए जो बंदा नेक्स्ट प्रॉफिट डिक्लेयर करेगा अपने आप को, उसे हम क्या बोलेंगे फिर, क्या बोलेंगे, False कज़ाब prophet। बोलेंगे, कज़ाब, फॉल्स प्रॉफिट कहेंगे, कज़ाब। जिस तरह हजरत अबू बकर सिद्दीक फॉट वॉर्स अगेंस्ट द फॉल्स प्रॉफिट, मुसलमा, मुसलमा हो गया, सज्जाद थी, असवदंसी। असवदंसी थे, मतलब बहुत ज्यादा उसकी एग्जांपल्स हैं। तो इसी तरह मुस्लिम्स जो है इन पाकिस्तान, उलमास वांटेड टू क्लैरिफाई ऑन द डॉक्यूमेंट्स दैट these people should be declared non-Muslim according to the Constitution of Pakistan। सर एक मिनट ऊपर कर सकते हैं, ये हेडिंग मूवमेंट, जी बेटा, ये मूवमेंट तकरीबन पाकिस्तान के अंदर चली। ये पहली दफा ये इशू राइज कब हुआ, 1953 के अंदर। व्हेन वाज द इशू ऑफ अहमदी स्टार्टेड, 52 के एंड पे स्टार्ट हुआ, 53 में दैट वाज ऑन इट्स पीक। 1953 में अहमदीज को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर करने का कहा, और मौलवी जितने भी थे, उलमास जितने भी थे असेंबली के अंदर, they said we will not accept the new constitution and this report until you declare Ahmadis as non-Muslims। Is it clear? जी बेटा। So until you people declare them non-Muslim, तो इसलिए ये हमारे पास जरूरी चीज थी। अच्छा, आगे चलते हैं दूसरे। तो इसका मतलब क्या है कि आफ्टर फेलियर ऑफ सेकंड रिपोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग अगेन डिलेड बेटा। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर बेटा? सर यस बेटा। सर आप लियाकत अली खान की फॉरेन पॉलिसी कब कराएंगे? लियाकत अली खान की करेंगे, वो इकट्ठी करेंगे इस टाइम पे, इस टाइम की ओवरऑल सही। इकट्ठी करेंगे। ओके जी, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स सेकंड पॉइंट, प्लानिंग कमीशन। बेटा, MGM was economist by profession. He focused on economic reforms. Therefore, planning commission started working under planning board। जी बेटा, planning commission started working under planning board। Is it clear? And he also made 5-year developmental plan
for Pakistan. बेटा याद है ना, कल मैंने आपको बताया था कि कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले आप उसका प्लान बनाते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव लिखते हैं. तो प्लानिंग वाज द फर्स्ट पार्ट. इज इट क्लियर बेटा? जी बेटा. प्लानिंग कमीशन was made by him, hence he gave direction to sustainable economic development in Pakistan. Is it clear everyone? Was that thing positive or negative? Positive. तो सर पॉजिटिव है. यस बेटा. तो पहले वाला पॉइंट क्या था? व्हाट वाज द फर्स्ट पॉइंट? सक्सेस और फेलियर. पहला आप फेलियर कर लेंगे, उसके बारे में एफ लिख दें, इसके साथ आप लिख दें एस. इज इट क्लियर? नाउ वी हैव अनदर वर्ड. क्वेश्चन आ सकते हैं हाउ सक्सेसफुल वाज. नहीं नहीं, इससे पहले गुलाम मोहम्मद पे बेटा अलहदा से 14 मार्क्स के क्वेश्चन आने के 0.00001% चांस भी नहीं. इज इट क्लियर? डिस्कवरी ऑफ नेचुरल गैस. नेचुरल गैस क्यों जरूरी है हमारे लिए? पहले तो हम ये देखेंगे कि मिनरल एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम वाज स्टार्टेड बाय हिम. मिनरल एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम वो सिर्फ लियाकत अली खान या ख्वाजा नाज़मुद्दीन का आने के चांस हैं, लेकिन वो भी इतने ज्यादा नहीं. वो जो कल किया था आपने वो, उसके अलावा किसी के चांस नहीं. मिनरल एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम वाज स्टार्टेड in which natural gas was discovered, therefore Pakistan's future of energy needs was secure and sustainable for long period. क्योंकि गैस के रिजर्व्स जो हैं, these reserves were sufficient for so many years in Pakistan. So that is why we can say his mineral exploration program was very suitable for development in Pakistan. Then we have the last important point, jute mill. ये भी सक्सेस के एलिमेंट में आ जाएगा. जी बेटा, that was also a success. Next one is beta jute mills in Pakistan. As far as jute mills are concerned, in the jute mill, beta in jute mills of Pakistan, first of all, jute was main export of Pakistan. बेटा जूट वॉज मेन एक्सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान. जूट आपने देखी हुई है? जूट क्रॉप एंड फाइबर कर लेते हैं इसका. आपने शॉपिंग बैग्स देखे होंगे शायद जूट के, लेकिन आपको नाम नहीं पता होगा. सर वो बोरी जैसे बनती है. जी, जिससे बोरी बनती है, जो आपकी गंदम वाली बोरियां होती हैं. ये दिस इज ग्रीन कलर में जो ये क्रॉप है, दिस इज जूट क्रॉप. आउट ऑफ जूट क्रॉप जूट बैग्स भी हो सकते हैं. जूट के आपके मल्टीपल जूट फाइबर जो है उससे आपकी बैग्स वगैरह बनते हैं, रग्स बन सकते हैं. मल्टीपल थिंग्स कैन बी. पैकिंग मटेरियल वी कैन मेक. फर्नीचर में भी यूज होता है ना. दिस इज द जूट थ्रेड, दिस इज द जूट फाइबर.
इज इट क्लियर बेटा? सर ये फर्नीचर में भी यूज होता है ना? फर्नीचर में भी यूज होता है। आपकी जूट फाइबर इज यूज टू, जूट बैग्स में अगर लिखूंगा जूट बैग्स, तो आपको ये जूट बैग्स, आपके अक्सर शॉपिंग बैग्स होते हैं। हैव यू एवर सीन दीज बैग्स? अब परफ्यूम भी मिलते हैं आपको अक्सर इसमें। जी बेटा, दिस इज कॉल्ड जूट। इज इट क्लियर? सो बेटा जूट जो है that is the main crop. Jute is the main crop. Yeah, it was the main export of Pakistan, which was present in East Pakistan. So he started processing of jute. Yes beta, okay. So processing of jute जो है, that was started processing of jute. Therefore Pakistan started earning more foreign exchange. Was that positive? Yes or no? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, was that positive thing? सर सक्सेस है। सक्सेस है। अच्छा, डोमेस्टिक पॉलिसी में these 4 domestic policies are quite sufficient. ये 4 बहुत है आपके लिए। अब मलिक गुलाम मोहम्मद was a big failure. मलिक गुलाम मोहम्मद was a big failure. अब मलिक गुलाम मोहम्मद ने ऐसा क्या किया था कि due to which we call him a big failure? इसके टाइम पीरियड में he changed 2 prime ministers and there were few problems in Pakistan due to which we consider him a big failure. Is it clear? Now, what were the problems in his time period? There are difficulties for him and for the other people who were ruling the country along with him. Problems in Ghulam Muhammad's time period. Problems in Malik Ghulam Muhammad era. जी बेटा, there were multiple problems in his time period. Number 1, food shortage. Food shortage in East Pakistan and in West Pakistan. There was in East Pakistan and in West Pakistan there was shortage of wheat. Wheat की shortage थी, and wheat is थोड़ा सा सर थोड़ा सा wheat ऊपर कर is सकते हैं? staple food of Pakistan. Wheat is staple food of Pakistan. जी बेटा, so shortage of wheat brought famine in East Pakistan and West Pakistan. People suffered from health issues. It became difficult for government to manage at the end Malik Ghulam Muhammad ने क्या किया? Yes, brought aid from USA. Millions of tons of wheat was
basically aid which was given by USA to Pakistan. USA ने पाकिस्तान को क्या चीज एड में दी? व्हीट जो है, इससे व्हीट शॉर्टेज खत्म हो। मोहम्मद अली बोगरा with the help of Muhammad Ali Bogra. Is it clear बेटा? मोहम्मद अली बोगरा कौन थे? He was prime minister in his time period. आपको एक और फैक्ट बताता हूं इसका कि मलिक गुलाम मोहम्मद dismissed Khwaja Nazmuddin, who was the previous prime minister before Muhammad Ali Bogra. His name was Khwaja Nazmuddin. So Khwaja Nazmuddin was dismissed by Malik Ghulam Muhammad over issue of wheat shortage. Is that clear, everyone? Okay, ji. Second, Ahmadi problem. Now, what was Ahmadi problem? Ahmadi problem was कि ulemas started country-wise protests due to Ahmadi issue. Therefore, Malik Ghulam Muhammad called army in Lahore and imposed martial law in Lahore. तो पहली दफा आर्मी को पॉलिटिक्स का रास्ता किसने दिखाया? सर मलिक गुलाम मोहम्मद ने आर्मी को रास्ता दिखाया था पॉलिटिक्स में आने का। बेटा मार्शल लॉ कंट्री सिर्फ पूरे पे नहीं लिखता, समटाइम्स मार्शल लॉ किसी एक कंट्री के पास। इसने लाहौर पे लगा दिया था जी, इसने लाहौर पे लगा दिया। इज इट क्लियर बेटा? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर एवरीवन? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. जी बेटा। Okay. Next, number 3. After Ahmadi problem, there was another problem: language movement. Language movement. Beta, language movements was started in 1952 in East Pakistan. What happened in regarding language? जी बेटा, so language movement में क्या हुआ कि in East Pakistan protests erupted due to language, as they wanted कौन सी लैंग्वेज को? They wanted Bengali as national language. So they wanted Bengali as the national language of Pakistan. So hence law and order became poor. Ji beta, is it clear everyone? Is it clear to all of you online students? Yes sir. क्या प्रॉब्लम्स? हाँ जी, 3 प्रॉब्लम्स मेन, ये 3 प्रॉब्लम्स हैं, वो अलहदा से हम करेंगे, वो एक 4 मार्क्स के क्वेश्चन के तौर पे करेंगे। ओके बेटा, नाउ आई एम जस्ट मूविंग टुवर्ड्स
he also, there are multiple questions which can be given on Malik Ghulam Muhammad, 7 marks question and 4 marks question. Now we have sample questions. Sample questions on MGM. Why did Malik Ghulam Muhammad dismiss Khwaja Nazmuddin? Question is, sample question, why did Malik Ghulam Muhammad dismiss Khwaja Nazmuddin? Khwaja Nazmuddin. Beta, you know about the problems of Pakistan now. आपको पता है कि according to parliamentary form of government, officially who is considered as the head of government? Prime Minister. तो सारा blame किस पे डाल दिया इसने? Prime Minister पे. इसने कहा कि ख्वाजा नाज़मुद्दीन ना तो फूड शॉर्टेज को हैंडल कर सका, ना ही ख्वाजा नाज़मुद्दीन लैंग्वेज मूवमेंट को हल कर सका, ना ही ख्वाजा नाज़मुद्दीन अहमदी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सका, इसलिए इसको पोस्ट से हटा दो। तो इसने हटा दिया। लेकिन एक तीसरी एक्चुअल वजह क्या थी इसको हटाने की, कि ख्वाजा नाज़मुद्दीन was more close to Muhammad Ali Jinnah and he was very popular in East Pakistan, and Malik Ghulam Muhammad was highly unpopular in West Pakistan, East Pakistan and West Pakistan. So that's why he did not want such individual to rule the country who was more popular than Malik Ghulam. Is it clear? That was the reason कि that movement जो है, that movement या he dismissed ख्वाजा नाज़। ठीक हो गया बेटा? चलें जी, पॉइंट नंबर 1, डिसमिस किस किस वजह से किया? नंबर द फर्स्ट मेन रीजन, KND was unsuccessful to resolve Kashmir, to resolve food shortages, इसलिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में तो ये सारे काम प्राइम मिनिस्टर के होते हैं, फूड को करना या डोमेस्टिक अफेयर्स को देखना। तो इसलिए इसने कहा कि वो डिसमिस इसलिए किया मैंने क्योंकि उसे फूड शॉर्टेज हैंडल नहीं हुए। सेकेंडली, KND was unsuccessful to handle law and order, KND was unsuccessful to handle law and order after Ahmadi problem. Or point number 3, KND was more popular than Malik Ghulam Muhammad, इसलिए उसने कहा कि भाई साहब तुम्हारा कोई हाल ही नहीं बनता, तुम भागो जाओ इधर से। यहां तक क्लियर होगा? इज इट क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर? अच्छा, यहां तक आज हमारा मलिक गुलाम मोहम्मद भी हुआ। अब इसकी जो 4 नंबर के सवाल हैं, कुछ और कुछ 7 नंबर के, वो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस वाले हैं, वो सारे हम एंड पे 1951 से 58 के कंबाइंड करेंगे। ठीक है, यहां तक ये इसकी डोमेस्टिक पॉलिसीज आर कंप्लीट। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स। सर यस बेटा। सर जो रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी हुई थी वो लियाकत अली खान के टाइम पे हुई थी ना? जी, रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी लियाकत अली खान पे। सर वो तो भी उस वो पे सारे क्वेश्चन सारे बेटा 4-4 नंबर के सवाल है, जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिसाइड्स द टॉपिक्स या आउट ऑफ टॉपिक क्वेश्चंस हैं, वो हम सारे अलग कर लेंगे। ठीक है, सही है सर। वो आउट ऑफ टॉपिक क्वेश्चन आता है ना, मतलब वो इसका इससे कोई रेलेवेंसी नहीं बनती डोमेस्टिक पॉलिसी से। ओके सर, ठीक है, चलें जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स।